हेलो बच्चों, कैसे हो? 11th क्लास इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 2. We have to find out units and dimension and units and measurements. Now we discuss about the mathematical formulas or mathematical tools. What are the mathematical tools which are used in physics? How can we find out them? So there are the different types of the mathematics which is used in physics. Then how can we apply them in the physics? So first we have to learn all the mathematical formulas to drive our physics. So let's we start करते हैं your beautiful and cute channel physics वाले अमित गर्ग सर. देन हेडिंग लगाइए आप लोग, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स, मैथ्स आर डिफरेंट टाइप्स. देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ द मैथ. फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यू कैन राइट ज्योमेट्री, trigonometry, exponential function, different types of different functions like logarithm, exponential function, etc. differentiation, integration and graph. So there are the many types of the math which are used in physics: algebra, coordinate system or coordinate geometry, trigonometry, different functions type like log x, a to the power x, e to the power x. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. तो दीज आर द वेरी. एंड देयर इज द आल्सो नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम भी स्टडी इन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास. सो यू नो वेरी वेल व्हाट आर द नंबर सिस्टम. एंड वी कैन राइट हियर नंबर सिस्टम एवरीबॉडी नो. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, whole numbers, integers. All you know about the natural numbers. Then first we start the number system. What is the number system? So note it down. नोट कर लिया सबने, हटा दें इसको. ओके, देन वी राइट नंबर सिस्टम. सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं हम, नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम्स. सो फर्स्ट वी राइट नेचुरल नंबर. What are the natural numbers which started from 1, 2, 3 up to and so on? All are the counted number is called natural number. Number 2, whole number. Whole numbers. It is denoted by W, which start from 0, 1, 2, 3 up to and so on. Number 3, integers. You can write I equal to started from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the integers number. P upon Q form, rational number or fraction number. You can write fraction number, fractions, rational number,
which are completely divided. For example, p upon q form is called rational number. Similarly, irrational number which are not completely right. For example, the number which are written in root, under root of p upon q, under root 2, under root 3, these are the irrational number. So everybody know what are the numbers very well in your small classes. For example, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन में सभी बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो इसको यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे. यहाँ पर एरिया एंड वॉल्यूम, ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं. तो हेडिंग लगाते हैं. हेडिंग लगाइए सबसे पहले आप लोग, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज. हेडिंग लगाइए ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज. इसमें राइट डाउन एरिया. सबसे पहले हम एरियाज फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल. What is the area of triangle? If a triangle that's ABC sides are A के before side small a से denote की जाएगी, B के before side small d, and this is C. Then the formula of area you can write area is equal to 1/2 base into height. Or we can write under root of s into s minus a, s minus b and s minus c. Here s is equal to a plus b plus c by 2, and a, b, c are sides of triangle. A, B, C are sides of triangle. So let's note it down. नोट कर लिया, हटा दें, ठीक है. ट्राइंगल का एरिया हो गया. आफ्टर दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सारे बच्चे जानते होंगे. सपोज दिस इज L, दिस इज B, so we can write L into B. Number 3, trapezium. What is the area of trapezium? Trapezium किस तरह से बनता है बेटा? Which have the two sides are parallel. Let A, B, C, D. This is our trapezium. Then the area is 1/2 perpendicular distance between parallel sides into sum of parallel sides means 1/2 distance. You can write AD into AB plus CD. This is the area of trapezium. नोट कर लीजिए, नोट करिए बेटा फटाफट. हो गया. नंबर 4 नोट करिए, सिलेंडर. What is the area of cylinder? Cylinder we know there is the 3 surfaces. 2 is circular surface. This is first top. We can write pi r square. This is second top, means bottom, pi r square, and this will be pi r l, or this is also pi r l. Two curved surface and 2 circular surface. So the total area of the cylinder you can write pi r square plus pi r square pi r l plus pi r l, or you can note that 2 pi r square plus 2 pi r l.
और वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, देन आर प्लस एल और आर प्लस एच. दिस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. दिस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. नोट इट डाउन. नंबर 5. area of circle. What is the area of circle? Pi r square or pi d square by 4. Here d is the diameter of circle. D is the diameter of circle. Number 6, sphere. What is the area of sphere? You can write 4 pi r square. Area of sphere 4 pi r square. Number 7, हेमिस्फीयर. और हेमिस्फीयर का हाफ कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे देखते हैं. स्फीयर हो गया आपका क्यूब. व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब? क्यूब हैव 6 फेसेज इक्वली. सारे के सारे फेस कैसे होते हैं क्यूब के? इक्वल फेसेज. देन एरिया ऑफ 6 इंटू साइड स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया? 6 इंटू साइड स्क्वायर. नोट कर लीजिए बेटा आप 2 मिनट के अंदर फटाफट से. कर लिया सभी ने? हटा दें, इरेज करें. ओके, चलिए. नाउ नंबर 8, क्यूबॉइड. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड एरिया. Cuboid like this. What is the area? 2 into L into B plus B into H plus H into L. Here L, B, H, height, width and length. Height, width and length. So these are the areas. We can easily find out area of cube, area of cuboid. Now we write volumes. What are the volume of these? Volume क्या होंगे इनके? तो volume की बात करते हैं हम. Volume. Number 1, sphere. What is the volume of sphere? 4/3 pi r cube. Volume of cube, side cube. Number 3, cuboid. L, B, H. L into B into H. Number 4, cuboid. Cylinder. Pi r square H. Cylinder pi r square H. Number 5, number 5, cone. Cone का 1/3 pi r square H. Note it down. Note down all of you. चलिए, हो गया सभी का नोट? गुड. तो ये दीज आर द वॉल्यूम्स एंड एरियाज ऑफ सम सिमेट्रिकल कर्व्स. ये हमने सारे सिमेट्रिकल कर्व्स के कुछ एरिया और वॉल्यूम यहाँ पर किए हैं. वैसे तो सारे बच्चों को पहले से ही लर्न होंगे, पर फिर भी एक बार आपको बता दिया. अब इसके बाद हम बात करेंगे एलजेब्रा की. एलजेब्रा. एलजेब्रा हेडिंग लगा लीजिए. एलजेब्रा मैथमेटिक्स आ गया आपका. एलजेब्रा के अंदर आपको कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले पहले से पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नंबर थर्ड a plus b into a minus b, that will be a square minus b square. These are the basic formula you have to find out. And minus plus 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 multiply by plus, this will be plus, plus multiply by minus, this will be minus. ये तो सारे बच्चों को आते ही होगा पहले से. प्लस माइनस प्लस, यू कैन राइट अगेन माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस वी कैन राइट प्लस. तो ये मल्टीप्लाइज के फॉर्मूलेज हैं जो आपको पहले से ही सारे पता है. इसके बाद में लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? द इक्वेशन विच हैव ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल हो. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन यू कैन फाइंड आउट the value of x is equal to minus 2. So this is called the linear equation, जिसमें highest power of x कितनी आती है? 1 आती है. उसको हम linear equation बोलेंगे. लेकिन इस तरह से नहीं हो x plus under root x plus 2 is equal to 0. This is not the linear equation, क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 1/2 भी है. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको लीनियर इक्वेशन नहीं लेट कर सकते हम. इसको सॉल्व करेंगे पूरे को होल स्क्वायर लेकर के, तब पता चलेगी ये कौन सी इक्वेशन है. अब आते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? विच हैज द हाईएस्ट पावर 2, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो. फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी आती है? 2 आती है. दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हियर आर द टू रूट्स ऑफ द x के 2 सॉल्यूशन होंगे, वो सॉरी इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की 2 वैल्यू जाएंगी. तो उन दोनों वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 मेथड होते हैं, बाय द फैक्टर मेथड. और जब फैक्टर मेथड नहीं लगे तो उस कंडीशन में कौन सा मेथड लगाते हैं? श्रीधराचार्य मेथड. कौन सा मेथड यूज करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे हम उस कंडीशन के अंदर. देखते हैं क्वेश्चन को करके, जरा एक लगा के देखते हैं हम. ये मैं इरेज कर दूं सारा. इरेज हो जाना तुम आफ्टर इरेज. चल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हियर आर द फैक्टर सच दैट द अमाउंट शुड बी 6 इफ वी फैक्टर द 5 के इस तरह से फैक्टर करिए कि 6 आ जाए रिजल्ट. तो 3 इंटू 2 और एडिशन करने पर 5 आएगा. देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लीजिए, देन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. सॉल्यूशन हो गए. बट इफ द इक्वेशन इज रिटन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन नॉट डू फैक्टर ऑफ दिस, बिकॉज मल्टीप्लायर्स 1 होना चाहिए, नहीं आ सकता. देन वी हैव टू अप्लाई श्रीधराचार्य मेथड. अकॉर्डिंग टू द श्रीधराचार्य, वैल्यू इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर और माइनस 4a1 c1 डिवाइड बाई 2a, 2 into 1. Then we can write x equal to minus 3 plus minus under root of 9 minus 4 divided by 2, or we can write minus 3 plus minus under root 5 by 2. This is our desired solution of x. ये इस तरह से सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए. अभी मान लीजिए कि एक और करके देखें जरा हम. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने. तो ये भी फैक्टर नहीं होंगे,
श्रीधराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। देन x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस मीन्स माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 ए सी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 7 और डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। देन x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 28 डिवाइड बाई 2 और यू कैन राइट x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ minus 24. Here is the under root minus. So these solutions are imaginary solution. Whenever there is under root minus, जब माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाता है then this is not a real number. This is the imaginary number. उसको हम क्या कहते हैं? imaginary number. So minus 1 अंडर रूट minus 1 is called iota. उसको क्या कह सकते हैं बच्चों आप? आयोटा बोल सकते हैं। यानी कि अंडर रूट माइनस 1 की जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होगी? आयोटा के इक्वल होगी। सो यू कैन राइट x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 24 रूट आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा डिवाइड बाई 2। ये सॉल्यूशन इसके आगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अब आप नोट कर लीजिए। हटा दें, इरेज कर रहे हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन सीरीज। व्हाट आर द प्रोग्रेशंस, यानी सीरीज क्या होती है? प्रोग्रेशंस। व्हाट आर द प्रोग्रेशंस? इसमें नंबर 1 आता है आपका अरिथमेटिक, arithmetic, arithmetic progression, arithmetic progression. If the series is written this like this, a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to and so on, then this series is called, और लास्ट में आप लिख सकते हैं a प्लस 1 2 3 एंड सो ऑन ही कर लीजिए। लास्ट टर्म तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो फर्स्ट टर्म होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म यानी t1। ये सेकंड टर्म t2 t3, इसी तरह से फाइंड आउट करते जाओगे तो लास्ट टर्म nth टर्म आ जाएगी। तो t1 t2 t3 से शो कर लिया। यानी कि इस तरह की चेन बने कोई 1 3 5 7 9 11 13 which have the common difference between the two successive terms. For example, t2 minus t1, this is t2 minus t1 will be equal to t3 minus t2, t3 minus t2, यानी इन दोनों की यदि हम 5 minus 3 करें तो कितना आएगा? 2, और 3 माइनस 1 करते हैं तो भी कितना आएगा? 2। तो दिस विल बी इक्वल टू डी। इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस और d इज इक्वल टू यू कैन राइट t2 माइनस t1 t3 माइनस t2। तो जब एक डिफरेंस सेम आता है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, लगातार वही डिफरेंस चलता चले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जो प्रोग्रेशन आया वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब इसका nth टर्म क्या होगी और इसके nth टर्म के सम क्या होंगे वो देखते हैं। तो nth टर्म what is the value of nth term? tn is equal to, let me tell me, सोचिए जरा, बताइए मुझे लिख करके, बताइए फटाफट कितनी आती है? अरे भाई 8th 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ आपने, भूल गए क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आसान था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके सम ऑफ द nth टर्म,
सम ऑफ एन टर्म्स, सम कितना आता है एन टर्म्स का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of n terms. n is the number of terms, a first number, a क्या चीज है, first term, here a first term, a is the first term. सपोज करिए कि हमारे पास में c, 2c, 3c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन मान लीजिए ये ले लेते हैं c, 2c, 3c अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. देन फाइंड आउट द सम ऑफ 36, s 36 बताना आप. देन हाउ कैन यू फाइंड आउट, n बाई 2, इट मीन्स 36 बाई 2, 2a, 2 इंटू c, फर्स्ट टर्म है c, प्लस 36 minus 1 into d, common difference is 2c minus c is equal to c. So thus you can find out easily, this is value 18, 2c plus 35c or 37c into 18, this is the our result. Now geometric progression next डालेंगे, जब तक नोट करिए आप इसको. geometric progression स्टार्ट करेंगे, अब करें. ओके ओके, इरेज कर दें बेटा, इसको डाल देते हैं. चलिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी हमने बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं. जियोमेट्रिक में ए सपोज करिए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह की चेन बने कोई, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 up to and so on. It means there is the common ratio between the two successive terms. This is term T1, T2, T3, T4 up to and so on. So there is the common ratio, T2 upon T1 will be T3 upon T2 will be T4 upon T3 will be R. This is the common ratio. Common ratio. You can write common ratio, and common ratio T2 upon T1, AR upon R, 2 upon 1. Then we can write 2 upon 1, 4 upon 2, 8 upon 4, 16 upon 8. All are equal to 2. All are equal to 2. So this is the common ratio, and this is your first term. This will be first term. Then what is the nth term? Tn equal to a r to the power n minus 1. Formula is a r to the power n minus 1. What is the sum of n term? We can write Sn is equal to a 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1, or Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 when r greater than 1. So there are the two formulas. You can write very well, a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r and a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. Note it down properly. Note करिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी. कर लिया सभी ने? ओके. नाउ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? हटा दें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस सीरीज गो टू इन्फिनिटी.
like ar square up to infinity. Then nth term is get on the infinity, but only the sum of n term. What is the sum? as infinity you can write a upon 1 minus r, where r must be less than 1. r कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए. केवल तभी अप्लाइड होगी. r ग्रेटर देन 1 के लिए इनफाइनाइट चेन नहीं बनेगी, उसका तो आंसर ही इन्फिनिटी आएगा क्या नहीं. फॉर एग्जाम्पल 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी. अप टू कहाँ तक दिया? इन्फिनिटी दिया. देन यू कैन राइट इजीली एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए मीन्स 1/1 माइनस 1/2. देन आंसर शुड बी 2/2 minus 1 that is equal to approximate 2. आंसर कितना आ जाएगा? approximate 2. Now you can write easily very well. Or what is the average value? How can we find out average value in algebra? So next heading लगाइए average value और mean value. और मीन वैल्यू. एवरेज यू कैन डिनोट एक्स बार और लाइक दिस और एक्स एवरेज. इफ वी हैव द मैनी नंबर्स तो नंबर्स को ऐड करके उन नंबर्स का डिवाइड लगा देते हैं. सारे बच्चे जानते हैं पहले से. x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn अपॉन n डिवाइड लगा देते हैं. ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज वैल्यू. नाउ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सप्रेशन? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाइनोमियल एक्सप्रेशन, let we have 1 plus x to the power n, then this value will be open 1 plus n into n minus 1 upon factorial to x square. इसको ऐसे नहीं, पूरा अलग से लिख करके बताते हैं आपको, पूरा इरेज करें पहले. द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, पूरा हेडिंग दोबारा से लगाते हैं. ये देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यू कैन राइट 1 प्लस एन एक्स, पूरी चेन है. n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट में x टू द पावर n. तो अब यहां पर यदि 1 प्लस एक्स की पावर n, बट कंडीशन है यहां पर इफ x शुड बी लेस देन 1. जो x की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए. सबसे पहली चीज आ रहा है फैक्टोरियल. इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल. ये साइन होता है हमारा फैक्टोरियल. और हम इसको ऐसे फैक्टोरियल x या फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 0, तो उसको दो तरह से शो कर सकते हैं. सबसे पहले आप फैक्टोरियल समझ लीजिए. फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल को साइन हम ऐसे भी दे सकते हैं इस तरह से. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1. फैक्टोरियल 1 इज आल्सो 1. फैक्टोरियल 2 को कैसे शो करेंगे? 2 इंटू 1. मतलब आपको फैक्टर 1 तक करना है बस. यदि फैक्टोरियल 3 तक आ जाए तो 3 to 1 है ना जी, 6 आंसर लिख देंगे. फैक्टोरियल 4 पूछ ले तो 4 3 2 1 24. फैक्टोरियल 5 पूछ ले तो 5 4 3 1 5 4 3 2 1 1 तक ओपन करना है. फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1. फैक्टोरियल 7 पूछे तो 7 से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन लास्ट तक कहाँ तक जाना है? 1 तक. तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब.
तो हमें ये तो फैक्टोरियल का मतलब पता चल गया। अब हमेशा हमें फैक्टोरियल अच्छी तरह से आना चाहिए। इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो आ गया फैक्टोरियल मेरा। अब इसके बाद देखिए कि मुझे अब यहाँ क्या करना। ये चेन बहुत बड़ी है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इस पूरी चेन का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन है, जैसे कि मैंने एरर्स में बताई थी आपको, व्हेन वी फाइंड आउट द एरर z इक्वल टू a/b, तब हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b टू द पावर -1। इसको हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ओपन किया था वहाँ पर, और आपको ये बताया था कि वेन एवर द x इज लेस देन 1, तो उसकी जो हायर पावर्स आएंगी वो कैसी होंगी, बहुत कम होंगी, वेरी 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 स्मॉल, छोटी 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 सी, उनको ऐड करने का कोई सेंस नहीं होगा। उसी तरह से डेल्टा b/b भी कैसा था, वेरी स्मॉल। तो हम जो आगे की टर्म्स हैं उनको क्या रख देते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं अच्छी तरह से 0.1 कम है, 0.1 का होल स्क्वायर उससे भी कम आएगा, और इसी तरह से 0.1 का होल क्यूब और भी कम होगा। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और केवल हमारे पास में एक ही टर्म्स रह जाती है 1 प्लस nx, और इस 1 प्लस nx की हेल्प से हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक जरा क्वेश्चन करके देखते हैं हम, क्वेश्चन करके बताइए, फिर एक आपसे पूछेंगे। मान लीजिए कि 1 प्लस 2x पावर -2, 1 माइनस 2x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर -3 एंड 1 माइनस 3x टू द पावर 2। इस पूरे को सॉल्व करना। कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन 1, देन वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस। तो हाउ कैन वी डू, किस तरह से हम करेंगे जब हमें नेग्लिजिबल को एजम्प्ट करना है, यानी मान सकते हैं नेग्लेक्ट। देन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए वही फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यानी 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन एक्स का मतलब 1 माइनस 4x, 2 इंटू 2 4, और प्लस अब पूरा नहीं लिखेंगे, डैश 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 करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वो हटानी है। हायर पावर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो इतना लिख दिया हमने। अब ऐसे इसमें लिखिए, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 6x प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई, सेम इसमें अप्लाइड करेंगे 1 माइनस 3x, फिर प्लस करके डैश 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 छोड़ देंगे। उसके बाद में ऐसे इसमें अप्लाइड करेंगे 1 माइनस 6x प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो अब इसमें बेनिफिट हो गया, ये तो पूरी टर्म इससे कट ही जाएगी। या फिर आप इससे अब एक लाइन क्या लिखेंगे इसमें, x इज वेरी स्मॉल, सो हायर पावर्स of x can be negligible. So higher power of x can be negligible. हायर पावर ऑफ x क्या की जा सकते हैं, नेग्लेक्ट की जा सकते हैं। देन यू कैन नेग्लेक्ट देम, इनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस 4x ये हटा दिया हमने अब सारा, और बचा हमारे पास 1 माइनस 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 3x एंड 1 माइनस 6x। दीज आर कैंसिल टू इच अदर, 1 माइनस 6x टू 1 माइनस 6x, और वी हैव 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 1 माइनस 3x। नाउ यू कैन राइट, अब इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, तो पावर -1 हो जाएगी, 1 माइनस 4x और 1 माइनस 3x टू द पावर -1। अब -1 को फिर ओपन करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, तो आप फिर ओपन कर लीजिए 1 माइनस 4x और दैट इज 1 प्लस 3x प्लस एंड सो ऑन। नाउ नेग्लिजिबल केस अगेन द नेग्लेक्ट 1 माइनस 4x एंड 1 प्लस 3x। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशन, मल्टीप्लाई करिए जरा इनका। तो 1 प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। आफ्टर दिस
1+3x, इधर लिख रहा हूं मैं, वहां से इधर आ गया हूं, -4x -12x²। दिस आल्सो अगेन टेंड्स टू 0, इसको भी टेंड्स टू 0 लिख देंगे। x² को नेग्लिजिबल कर रहे हैं अपन, तो 1 माइनस क्या बचा, x, 3x - 4x x, तो 1 माइनस हमारे पास में आंसर क्या बच गया, 4x। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी हुआ कि नहीं, आसान है। चलिए नोट कर लिया सभी ने, अगला करें। अगला एक आप करके बताइए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको पूरे को। चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं, चलो जल्दी 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 कर दिया। नाउ सपोज वी हैव ए GH इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस H अपॉन R टू द पावर -2। इसको हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगानी है इसमें। ये आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 में है, तो सारा का सारा कुछ फिजिक्स का ही है, यानी फिजिक्स में ज़रूरत थी इसी वजह से आपको बताया, अदरवाइज बताने की ज़रूरत नहीं। शुरू में एरर में लग गया, अब कई फॉर्मूलों में लगता है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। GH इक्वल टू GS इंटू 1 प्लस H अपॉन R टू द पावर -2। अब इसमें लगा दीजिए, अप्लाइड करिए। देन GS इंटू यू कैन राइट by the binomial expression -2h upon r and plus and so on. What is the so on? Higher powers of h upon r. h upon r is negligible. h upon r बहुत छोटा है, क्योंकि r रेडियस ऑफ अर्थ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए। देन GS इक्वल टू GS इंटू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन r। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों, हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना। आप नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं इस पर ही, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 एंड 2x पावर 3। सॉल्व करिए जरा, इसको करके बताओ मुझे फटाफट से। कर लिया, नहीं कर पाए आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए 1 माइनस 3x बनेगा, प्लस एंड सो ऑन लिख देंगे लगातार। ये कितना बनेगा, 1 माइनस 4 इंटू 2 8x प्लस एंड सो ऑन, और डिवाइड बाई इसमें लगाइए जरा 1 माइनस 2x प्लस एंड सो ऑन, और इसमें क्या लगेगा बेटा 1 प्लस 6x प्लस एंड सो ऑन। अब हायर पावर्स कैन बी नेग्लिजिबल, हायर पावर्स को हटा देंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 1 माइनस 3x और 1 माइनस 8x, इसके बाद में 1 माइनस 2x और ये 1 प्लस 6x। मल्टीप्लाई करिए इनका तो 1 माइनस 8x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 24x² डिवाइड बाई 1 प्लस 6x 1 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6 इंटू 2 12x²। दिस इज अवर सॉल्यूशन। नाउ 24x² कैन बी नेग्लेक्ट 0, ये भी टेंड्स टू 0, तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 माइनस 8 और 3 11x डिवाइड बाई 1 प्लस 4x, दिस विल बी। अब इसका क्या करेंगे हम 1 माइनस 11x और 1 प्लस 4x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। कितनी लिख सकते हैं, पावर -1। देन फिर अप्लाइड कर दीजिए एक बार 1 माइनस 11x 1 माइनस 4x और मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 4x माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 44x²।
ये 44 एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो कितना बचा जी 1 माइनस 15x। कितना आ गया आंसर 1 माइनस 15x। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे 1 माइनस 15x। वन माइनस 15x हो गया नोट सभी का, इरेज कर दें। अब देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस एक्स। बहुत ईजी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद में पावर्स रूल सीखिए, पावर्स रूल, हेडिंग लगा लीजिए पावर्स रूल। ये रेज कर दें। पावर्स रूल में नंबर 1 ए टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी लगाते हैं हम 1। नंबर 2 ए टू द पावर इन्फिनेटिव, तो ये क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ये आएगा हमारा नॉट डिफाइंड। नंबर 3 इफ ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y, मल्टीप्लाई में पावर्स विल बी एडेड, जब बेस सेम हो तो ए टू द पावर x प्लस y। नंबर 4 if a to the power x divided by a to the power y, then you can write a to the power x minus y. If a to the power x whole power y, then we can write a to the power x into y. यदि पावर के ऊपर पावर है देन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, a to the power x into y. तो these are the power rules and you can write 6 also 1 upon a to the power x, you can write a to the power minus x. तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। पावर्स रूल से ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मान लीजिए कि हमें ये कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन पावर्स रूल से ही होगा। पहले तो वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 1। अब इंटू टोटल पावर चेक करिए 10 टू द पावर इधर कितनी 11 प्लस 15 और यहाँ पर चेक करिए 16 माइनस 5 ऐड हो गई। अब आफ्टर दिस सॉल्यूशन करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 11। अब यहाँ पर सॉल्व करके लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 26 माइनस 11 दैट इज 15। पावर कितनी आ जाएंगी 10 टू द पावर 15। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पावर्स रूल से। अब कुछ लॉग के रूल हैं वो आपको सिखाएंगे, पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया सभी ने, हटा दें बच्चों। लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी, लॉगरिथम, लॉग के फॉर्मूलेज हैं कुछ
नंबर 1 log e m into n, यदि log मल्टीप्लाई में दे रखा हो देन यू कैन राइट log m प्लस log e n, ऐड में हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए नंबर 2 log m टू द पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है n log e m। मान लीजिए थर्ड log e m अपॉन n दिया हो देन वी कैन राइट log e m माइनस log e n। नंबर 4 मान लीजिए log 1 की वैल्यू आती है ऑलवेज 0। नंबर 5 log 0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। अब क्या रह गया, log e बेस में 2 की वैल्यू 0.693 या 0.69 भी आप यूज कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू 2.303 ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फार्मूलेज हैं, अच्छी तरह से हमें तैयार रखने हैं। नोट कर लीजिए आप लोग सारा, बहुत अच्छी तरह से नोट करिए। अब अलजेब्रा के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कैसे क्या करते हैं तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अरेंज कर दें। ट्रिगोनोमेट्री, या उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1। तो ये देखिए बच्चों, ये मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेज है वो एक पार्ट में तो कंप्लीट होने वाले नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। आज हमने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम और थोड़ा बहुत फॉर्मूले, ज्योमेट्री के एरिया, वॉल्यूम, ये सब बातें की। अब हम अगले जो पार्ट में सेकंड पार्ट जो इसका बनाएंगे इंग्लिश मीडियम 11th क्लास के लिए, तो उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ, इसके जितने भी पार्ट बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और मैं बनाऊंगा। उनको अच्छी तरह से देखिए, वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।